Hello students, welcome to the maths class. Today we are going to start a new chapter, that is algebraic expressions. And if you still have any problem related to any topic from your previous chapter, you can ask me that personally. But for now, focus on this chapter. Okay, so in the previous class 6, you must have got a simple introduction of algebra. Now you will learn more facts about it in this class and in the upcoming sessions. So let us start. First of all, what is an algebraic expression? So see here, a combination of constants and variables connected by some or all the four fundamental operations is called algebraic expression. Now, before explaining you this statement, let me give you a simple view of what is variable and what is constants. Okay. Variables are those symbols whose values keep on varying. A symbol whose values keep on varying are variables. As the name only suggests, variables means vary. Vary means change. So whose values keep on changing are known as variables. And in case of constants, symbols who have a definite numerical value are known as constants. Say, इन एनी एक्सप्रेशन आप कांस्टेंट मतलब होते हैं बेसिकली नंबर्स जो आप लेते हैं. अगर 2 है तो 2 कहीं पर भी 2 ही तो रहता है, वो कहीं जाके 3 तो नहीं बन जाता, 4 तो नहीं बन जाता. 2 मीन्स इट इज 2. नाउ कमिंग ऑन टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें, दैट मीन्स अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड वॉट एवर यू यूज. सो x की वैल्यू हो सकता है किसी एक इक्वेशन में 2 आए, किसी दूसरी इक्वेशन में 3 आ जाए, किसी तीसरी इक्वेशन में 4 आ जाए. ऐसे ही केस y z सबके साथ होता है. सो दैट मीन्स कि वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं दैट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन. सो वेरिएबल्स आर द सिंबल्स whose value keep on changing and constants are the symbols who have a definite numerical value. Basically constants are the numbers, definite numbers. Okay, now there is a word used in this line, fundamental operation. Fundamental operations मतलब different types of operation that you use in mathematics. It can be either addition or subtraction, multiplication or division also. So these are the 4 mathematical fundamental operations which you use. Now coming back to algebraic expressions. So algebraic expressions are the combination of constants and variables. जब किसी equation में या कहीं पर constant, variable सब आपस में साथ में जुड़े हुए होते हैं, किसके थ्रू? किसी भी fundamental operation के थ्रू, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू जब कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल सब आपस में कंबाइंड होते हैं, सो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. Here I have used variables also, here I have used constants also, and they all are together connected by some mathematical operation, some fundamental operation. Basically here I have used 2 operations, that is minus and plus. And if you see, they all the parts are joined together using these mathematical operations. So this is an example of algebraic expression. Now moving on to terms. The different parts of algebraic expressions separated by the sign plus or minus are called terms. देखिए algebraic expression ये आपको पता है लिखा था. इसमें क्या होता है कि अगर आप इस साइंस को इग्नोर करें, अभी के लिए मैं बोल रही हूँ इग्नोर करिए, तो देखिए कई कई पार्ट्स में, कई टुकड़ों में बटा होता है. एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, और ये सब टुकड़े जुड़े किसके थ्रू होते हैं? इन सब ऑपरेशंस के थ्रू, प्लस माइनस. सो कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, जो कि अलग अलग होते हैं, किसके थ्रू? प्लस और माइनस. देखिए प्लस माइनस के साथ सब एक साथ लिखे गए हैं ना, लेकिन यही प्लस और माइनस इनको अलग अलग भी कर रहा है. अगर देखिए आप इस बात को ध्यान समझिएगा, अगर आप प्लस माइनस ना लगाते तो कुछ ऐसे लिख देते ना. कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ है? कितनी डिफिकल्टी होती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये. सो ये प्लस माइनस क्या करते हैं, ये इन टर्म्स को, इन पार्ट्स को अलग अलग रखते हैं. सो ये जो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं. सी हियर, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में हैज 3 टर्म्स. इसमें कुछ 3 टर्म्स है. कितने टर्म्स है? 3. इस प्लस माइनस ने इसको 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है. एक 2x स्क्वायर, एक माइनस 5x, एक 6. नाउ सी,
2x स्क्वायर और 6 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसलिए मैंने उसमें साइन नहीं लगाया। बट इन केस ऑफ अलजेब्रा अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसमें साइन लगाना कंपलसरी होता है। मतलब आप 5x को सिंगल 5x नहीं लिख सकते, उसमें माइनस साइन लगाना इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू में अगर प्लस साइन नहीं लगाते तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज व्हाट टर्म इज। कमिंग ऑन टू फैक्टर ऑफ ए टर्म, देखिए एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन से छोटा टर्म्स होता है, टर्म से छोटा फैक्टर होता है टर्म का। टर्म का फैक्टर क्या होता है? ओके, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर माइनस 2xy, मैंने एक ये एक्सप्रेशन लिया है, कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे अगर इस साइन माइनस साइन को देखा जाए तो ये इस एक्सप्रेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। दैट मीन्स एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब इन टर्म को भी हम कुछ पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। देखिए 5x स्क्वायर एक टर्म है, इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू एक्स। सो ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया ना। सो ये दीज स्मॉल पार्ट्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म 5x स्क्वायर। Similarly, minus 2xy can also be broken into small parts. Minus 2 multiplied by x multiplied by y. और ये जो छोटे छोटे parts हैं ये क्या कहलाते हैं? Factors. Factors of what? Factors of term. Which term? Minus 2xy. So the algebraic expression this consists of two terms, 5x square and minus 2xy. दो term है इसमें, और इन दोनों term के factors क्या क्या हो गए? ये और ये। Therefore, a term is a product of factors. आप बोल सकते हैं ना एक टर्म फैक्टर्स का प्रोडक्ट कहलाता है। देखिए आपने इन फैक्टर्स को जब आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाता है ना। इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये टर्म मिल जाता है ना। दैट मीन्स अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। नाउ सी, this is a chart I have made. This is basically a tree which tells you the relation between expression, terms and factors. ये चार्ट, ये ट्री जो बना है ये आपको बताता है कि एक्सप्रेशन में, टर्म्स में, फैक्टर्स में क्या रिलेशन होते हैं, किस ऑर्डर में ये होते हैं। सी, मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर y माइनस 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टर्म्स बिटवीन देम, सो कौन से टर्म्स होंगे और कितने टर्म्स होंगे? इसमें दो टर्म्स होंगे। एक ये पूरा, जैसे कोई ऑपरेशन लग जाता है सो उसके बाद जो होता है वो दूसरा टर्म होता है। हर एक ऑपरेशन के साथ जो टर्म होता है, जैसे देखिए बीच में माइनस लग गया तो ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया। यहाँ पे कोई और साइन लगा दिया तो प्लस माइनस कोई उसके बाद लिखा होता तो वो एक अलग टर्म होता। मतलब जो ये प्लस माइनस ये सब के जो साइंस होते हैं ये आपके टर्म्स को अलग अलग करते हैं। फाइन, सो ये बहुत ईजी है। जहाँ भी आपका साइन लगा है उसके लेफ्ट साइड वाला एक टर्म, उसके राइट साइड वाला दूसरा टर्म। सो सी, ये पहला एक टर्म हो गया -7। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको माइनस के साथ क्यों लिया, क्योंकि अलजेब्रा में ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी है। कोई भी नंबर, कोई भी टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन विदाउट साइन नहीं लिखा जाता है। यहाँ मैंने प्लस का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जहाँ भी पॉजिटिव साइन होता है उसको लगाना नेसेसरी नहीं होता। आप उसको विदाउट साइन भी लिखेंगे, वो अंडरस्टूड रहता है कि येस दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। बट जहाँ पे नेगेटिव साइन होता है वहाँ पर आप साइन ज़रूर लगाएंगे टू शो दैट इट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। फाइन, सो सी 2x स्क्वायर y एक टर्म हो गया, -7 दूसरा टर्म हो गया। कमिंग ऑन टू फैक्टर्स, अब देखिए ये तो सिंगल है तो इसमें तो कोई फैक्टर्स ब्रेक नहीं होगा, बट इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना। आप इसको ब्रेक करेंगे तो इस तरह से कुछ ब्रेक होगा ना, 2 × x × x × y, कुछ इस तरह आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करके ये मिलता है ना। दैट मीन्स इसमें कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 और 4। और वो कौन कौन से हुए? 2x x y, इन्हीं सब में तो ब्रेक हुआ था। सो ये सारे क्या हो गए? इस पर्टिकुलर टर्म के फैक्टर्स हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालें सो यू विल ऑब्टेन टर्म। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टर्म्स मिल जाएंगे ना। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन टर्म एंड फैक्टर्स, एंड दिस होल ट्री explains you what is the relation between expression, term and factor. Now I hope it is very clear to you all. Moving on to questions from your exercise. Question number 1 says write all the terms of each of the following expressions. अब आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिए होंगे और आपको बताना है कितने टर्म्स होंगे और कौन कौन से। सो बहुत ईजी, आपको मैंने बता दिया टर्म्स कैसे निकालते हैं। सो सी, ये एक्सप्रेशन था
5x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 7। सो देखिए आप ऐसे टर्म्स निकाला है जैसे मिस्टेक नहीं होगी कभी। ये माइनस साइन है, इसके लेफ्ट में क्या है 5x की पावर 4, वो एक टर्म हो गया। इसके राइट में क्या है 3x क्यूब, वो दूसरा टर्म हो गया। सॉरी मैंने यहाँ पे क्यूब नहीं लगाया है, सो 3x क्यूब। फाइन। अब दूसरा साइन क्या प्लस, इसके लेफ्ट में क्या है 3x क्यूब, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं विद माइनस साइन, क्योंकि इसके आगे क्या था, जिसके पहले जो साइन होता है वो उस टर्म का साइन कहलाता है। 3x क्यूब के पहले माइनस था ना, सो मतलब इसका साइन माइनस है। अब इस प्लस के पहले 3x क्यूब था, वो हम ऑलरेडी लिख चुके, तो इग्नोर दैट। इसके राइट में क्या है 2x, सो 2x हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया। अब इस प्लस के साइन के लेफ्ट में 2x है जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो राइट में जाएंगे 7 हमारा नेक्स्ट टर्म होगा। ये मैंने एक ट्रिक बताई, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप बिना इसके भी कर सकते हैं कि इसमें 4 टर्म आपको दिख रहा है, 5x रेज टू द पावर 4, 3x क्यूब, 2x 7, और 3x क्यूब को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको उससे साइन के साथ लिखते हैं। सो दीज 4 आर द टर्म्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। Moving on to question number 2, write the constant terms in each of the following expressions. As I told you कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, मतलब जो भी नंबर्स यूज होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं x, y, z, a, b, c, d, ये सब आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा है तो वो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर सिंगल अकेला लिखा हो, जैसे यहाँ 7 लिखा था, सो 7 आपका कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 कांस्टेंट है, x² y वेरिएबल, ऐसा नहीं, ये पूरा एक साथ लिखा है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं है। इसमें जो है आप 2 को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। कांस्टेंट मतलब अलग से सिंगल कोई नंबर लिखा हो वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। सो देखिए पहला मैंने क्वेश्चन लिया, उसमें x² -8 था, इसमें कांस्टेंट क्या होगा -8, वो सिंगल नंबर है। दूसरा एक्सप्रेशन लिया मैंने x² -4x + 7/9, इसमें कांस्टेंट क्या होगा 7/9। जैसे मैंने बोला -4x में से आप ये नहीं बोल सकते कि 4 कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो एक वेरिएबल के साथ लिखा है ना, x एक वेरिएबल है उसके साथ लिखा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब ओनली नंबर्स, तो 7/9 आपका कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में। Now I hope you will be able to solve questions given to you in homework related to this concept which I told you, which I explained you very well. I hope you will be able to solve questions on your own. So that's all for today. Thank you.